Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, air. Warm up. Can you see air? No, air cannot be seen but felt when it moves. How can you feel the air move? Take a sheet of paper, notebook or a book, wave it in front of your face. Do you feel the air brush against your face? आप एयर को देख सकते हैं? नो, बट आप इसे फील कर सकते हैं. तो आप कैसे फील करेंगे? कोई भी आप पेपर का शीट लीजिए, नोटबुक है या बुक है, उसके बाद अपने फेस पे उसको आप वेव करते हैं ना, तो आपको एयर फील होगी. आर्ट एंड क्राफ्ट. Whenever you go to any fair, there may be find a firki or a paper fan. You can make it yourself from a paper as shown in the figure below. ये देखिए, आप कभी देखा होगा आपने फिरकी, इस तरह से आप इसे खुद बना सकते हैं. Hold the stick of the firki in an open area and then in a closed room with two ceiling fans switched off. Move it little back and forth. Observe what happens in both the cases. Yes or no. Whatever may be the observation, can you give explanation for that? A firki is playway material which operates in moving air. Open areas allow air to move here and there, so a firki rotate in open areas. There is no such movement of air inside a closed room with a ceiling fan switched off. As a result, fan of the firki does not rotate. With the help of a firki, we can know the direction in which the air is moving. अच्छा, आपने स्टिक को होल्ड करके रखना है फिरकी के ओपन एरिया में, और फिर आपने उसको क्लोज रूम में करना है जहाँ पे आपका सीलिंग फैन स्विच्ड ऑफ है. ठीक है, आप आगे पीछे जो है मूव करेंगे, और दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं आपने वो ऑब्जर्व करना है. देखिए, जब आप फिरकी को लेके ओपन एरिया में जाते हैं तो आपका जो फिरकी है वो रोटेट करेगा. ठीक है, लेकिन जब आप क्लोज रूम में जाएंगे तो ऐसी कोई मूवमेंट आपको शो नहीं होगी, क्योंकि आपका सीलिंग फैन स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं करेगा. तो फिरकी की हेल्प से हम जान सकते हैं कि एयर की डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है. एयर इज एवरीवेयर. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट. इट इज ट्रांसपेरेंट. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. हर जगह आपकी एयर प्रेजेंट है, उसका कोई कलर नहीं होता, आप इसके पास इसके थ्रू देख सकते हैं, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट है. एंड हमारी जो अर्थ है वो भी लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. तो जो layer of air है जो हमारी earth को surround करती है, that is called atmosphere. The components of air and its quantity. Nitrogen देखिए 78% है, oxygen 21%, argon is 0.9% and carbon dioxide 0.03%. Apart from these, Earth atmosphere comprises of a small quantities of water vapor, gases like helium, neon, krypton and a very small quantity of ozone. इनके अलावा देखिए water vapors भी होते हैं एयर में, आपकी gases भी होती हैं like these gases, बहुत थोड़े अमाउंट में. Oxygen, as we all know, oxygen is the most important of all the gases present in air. It is required by both plants and animals for respiration. Respiration is a process that generates energy within the body to do work. And food plus oxygen, it gives carbon dioxide plus water. Energy is needed for growth and all kinds of activities, that is sitting, walking, running, sleeping, etc. Plants also require energy to make food, grow and maintain their shape. Oxygen is also required for combustion of fuels. It supports combustion. No fuel can burn in the absence of air containing oxygen. ऑक्सीजन हम सभी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को. तो रेस्पिरेशन आपका प्रोसेस है जिसमें आपकी एनर्जी जनरेट होती है विद इन द बॉडी. सो हियर इज द इक्वेशन, फूड प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. एनर्जी देखिए, सभी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ग्रो करने के लिए, अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए. कंबशन जो होता है फ्यूल का, उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंबशन क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है कंबशन को सपोर्ट करता है. तो कोई भी आपका जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं बर्न करेगा. एक्टिविटी 1, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड लाइट इट. फिक्स द बर्निंग कैंडल ऑन अ फ्लैट सर्फेस. Take a glass tumbler and cover the burning candle. While you cover the candle, watch the flame continuously and record your observations. When a burning candle is covered with a glass tumbler, initially the flame flickers and then dies down. It shows that oxygen is essential for combustion. आपने एक छोटी सी कैंडल लेनी है, उसको लाइट करना है, फिर आपने उसको फ्लैट सरफेस पे फिक्स कर देना है, फिर ग्लास टम्बलर आपने लेना है और बर्निंग कैंडल को कवर कर देना है. ओके, तो आप देखेंगे जब आप कैंडल को कवर करेंगे आपने फ्लेम को कंटिन्यूसली वॉच करना है. जैसे जब आपने बर्निंग कैंडल को कवर किया तो आप इनिशियली देखेंगे कि जो फ्लेम है फ्लिकर होगी और उसके बाद इट विल डाई डाउन. इसका मतलब ऑक्सीजन जो है कंबशन के लिए बहुत ज़रूरी है.
Carbon dioxide. It is required by the green plants. Green plants manufacture their food in the presence of carbon dioxide, water and sunlight through the process of photosynthesis. The green color of leaves is because of the presence of pigment called chlorophyll. The plant parts that are not green cannot manufacture their food. Chlorophyll helps the plant parts to trap solar energy and fix the carbon present in the carbon dioxide into glucose. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, राइट? जो फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. सो देखिए, योर इज द इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस glucose. Study the reactions of photosynthesis and respiration. You will realize that respiration and photosynthesis are contrary to each other. The carbon dioxide produced in respiration is used in photosynthesis, and the products of photosynthesis, glucose and oxygen, are used in respiration. The cycling of carbon dioxide and oxygen is essential for maintaining their balance in the atmosphere. Any undesirable human activity such as deforestation or excessive use of fuels disturbs their balance in atmosphere. Such activities lead to the use of oxygen and simultaneous release of excess of carbon dioxide, creating an imbalance. अच्छा देखिए, आप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों की आपको इक्वेशन दे रखी है एंड दोनों ही इक्वेशन जो एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है. कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, एंड जो आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये आपके रेस्पिरेशन में यूज हो जाते हैं. तो जो साइक्लिंग है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का वो काफ़ी असेंशियल है ताकि जो इनका बैलेंस है आपका एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहे. बट क्या है कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई अनडिजायरेबल ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है या फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है. नाइट्रोजन. Nitrogen is also a very important constituent of air. It is important to all living organisms. Plants and animals require nitrogen for their growth. Proteins, which are the building blocks of an organism, are made of nitrogen. Plants obtain nitrogen from soil. Nitrogen from atmospheric air is fixed in the form of nitrates in the soil. There are many ways in which the atmospheric nitrogen is fixed for plants to make use of nitrogen. Farmers fulfill the nitrogen demand of plants by applying the nitrogen-rich fertilizers to soil like urea. Animals cannot use nitrogen from air, though 78% of the atmospheric air consists of nitrogen only. Animals depend on plants for their supply of nitrogen. The plants growing in nitrogen deficient soil are mostly insectivorous. They trap and digest the insect to meet their nitrogen requirement. अच्छा देखिए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स एंड एनिमल्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए. प्रोटीन जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये आप ऑर्गेनिज्म की नाइट्रोजन से बने होते हैं. प्लांट्स को नाइट्रोजन सॉइल से मिलता है. नाइट्रोजन जो है आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो फिक्स हो जाती है नाइट्रेट्स के फॉर्म में. बहुत सारे तरीके हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के. फार्मर्स जो है इस नाइट्रोजन डिमांड को फुलफिल करते हैं जब वो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन होता है. एनिमल जो है वो नाइट्रोजन को एयर से तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, और जो 78% जो एटमॉस्फेरिक एयर का है उसमें आपका नाइट्रोजन होता है. तो एनिमल्स जो है नाइट्रोजन के सप्लाई के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो प्लांट्स आपके किसी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में होते हैं तो वो ज़्यादातर अपने वो इंसेक्टिवोरस होते हैं क्योंकि वो इस अपनी डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं. कमर्शियली नाइट्रोजन इज यूज्ड इन पैकिंग फूड स्टफ्स. The packets of potato chips you buy from shops have nitrogen in them because chemically nitrogen is not a reactive gas. अच्छा, नाइट्रोजन को ना फूड पैकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे आपने पोटैटो चिप्स जो आप खाते हो एकदम से पैकेट बिल्कुल फूला हुआ होता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है. क्यों होती है? क्योंकि केमिकली नाइट्रोजन जो है आपकी रिएक्टिव गैस नहीं है, राइट? इट हेल्प्स कीप द पैकेट इन्फ्लेटेड एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन स्पॉइल द फूड. तो ये पैकेट को इन्फ्लेटेड रखता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. Properties of air. Air occupies a space. Do you think air is a matter? Yes, like any other matter, it has mass and occupies space. Air आपका matter है क्योंकि इसका mass होता है and it occupies space. Activity 2. Take a small trough, fill it with water, take an empty glass tumbler, invert the tumbler into the water of the trough. You will see that the water will not go into the tumbler. Now tilt the tumbler to one side. You will see that the air bubble starts coming out of the tumbler and water starts entering the tumbler. आपने ग्लास ट्रफ लेना है, उसको वाटर से भरना है. एम्प्टी ग्लास को आप क्या करेंगे? इन्वर्ट कर देंगे. आप देखेंगे कि जो पानी है एकदम वो आपके टम्बलर में नहीं आया. फिर जैसे ही आप उसको टिल्ट करेंगे ना
तो आपको एयर बबल्स नजर आएंगे, ओके, और वाटर जो है वो टम्बलर के अंदर चला जाएगा. नंबर 2, एयर हैज वेट. एयर हैज वेट. दिस कैन बी शोन बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. Activity 3. Take 2 balloons of the same size. Take thin long stick and tie a string at its center. Fill both the balloons with air so that both of them are equal in size. अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए 2 बलून्स लेने हैं सेम साइज के, ओके, और फिर एक पतली सी लंबी स्टिक लेनी है और उनको टाई कर देना है. दोनों ही बलून्स को आपने फिल करना है एयर से, और इस तरह से फिल करना कि देखिए दोनों जो है उनका दोनों का सेम साइज है. द वन बलून to each side of the stick with the strings of the same size. The weight on either side of the stick is now equal. Now take a sharp needle and pinch one of the balloons near its neck. Air escapes through this pinhole slowly. You will see that the side of the stick with the inflated balloon hangs down. This shows that the balloon with air in it's heavier. The experiment proves that air has weight. अभी दोनों के अंदर इक्वली हमने उनको इन्फ्लेट किया था. अब दोनों का साइज इक्वल है. अब आप क्या करेंगे, शार्प नीडल से उसको एक को प्रिक कर देंगे, तो जितनी भी जो एयर होगी स्केप हो जाएगी. अब जो आपका इन्फ्लेटेड बलून है वो आपका डाउन आ जाएगा. दैट मीन्स कि जो बलून जिसमें आपकी एयर है वो हेवियर है. तो एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि एयर हैज वेट. थर्ड, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एक्टिविटी 4. फिल ग्लास वाटर अप टू ब्रिम. प्लेस अ थिन स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन टॉप ऑफ द ग्लास. प्रेस द कार्ड फर्मली. Turn the glass upside down and remove your hand. You will be surprised that the water and the paper do not fall down. It is because air from below is exerting pressure and this pressure is supporting the cardboard imposition. आपने ग्लास को पानी से भरना है ब्रिम तक, फिर एक स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ग्लास के टॉप में रखना है, फिर आपने कार्ड को फॉर्मली प्रेस करना है. अब आपने ग्लास को अपसाइड डाउन आपने टर्न कर देना, जैसे कि आपको ये फिगर में नजर आ रहा है, राइट? तो आप देखेंगे कि जो वाटर और जो पेपर है वो नहीं गिरेंगे. इट इज़ बिकॉज फ्रॉम बिलो इज एक्सर्टिंग प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड इम्पोजिशन. ऐसा क्यों हुआ कि जो एयर है आपके वो नीचे से उसको प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और फिर ये जो प्रेशर है ये इसको सपोर्ट कर रही है कार्डबोर्ड. द थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हैज वेट. इट देयरफॉर एक्सर्ट्स अ प्रेशर. वी डू नॉट गेट क्रश्ड अंडर इट्स वेट बिकॉज देयर इज air inside our bodies. It balances the pressure of the outside air. Air presses on everything in all directions. If you squeeze an empty plastic bottle and then release it, the bottle will regain its shape. This is because air enters the bottle and pushes the sides out again. जो thick layer है एयर की अराउंड द अर्थ जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, तो देखिए जो थिक लेयर होती है एयर की उसमें वेट है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो हम इस वेट के अंडर क्रश क्यों नहीं होती? क्योंकि एयर हमारी बॉडी के अंदर भी है और ये जो बाहर का जो प्रेशर है, आउटसाइड का जो एयर है उसको बैलेंस करता है. एयर जितनी भी चीज़ें हमारे जितनी भी आसपास चीज़ें हैं हर चीज़ को प्रेस करता है ऑल डायरेक्शन में. किसी भी आप एम्प्टी बॉटल को स्क्वीज करोगे फिर रिलीज करोगे, जो बॉटल है अगेन अपने शेप में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एयर जो है बॉटल में एंटर करती है एंड उसकी जो साइड्स को फिर से पुश करती है, राइट, बाहर की तरफ. Air is necessary for living. Air is necessary for all living organisms. They breathe in air for the most important life process called respiration. The process of digestion converts our food material into soluble compounds, which are absorbed by the blood and carried to the cells. Oxygen reacts with the digested food and releases energy which helps in other activities of the body and also maintains our body temperature. The waste product, carbon dioxide, is carried by the blood to the lungs from where it is breathed out. Air सभी living organism के लिए important है क्योंकि क्या करते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं, राइट. जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो क्या होता है, इसमें हमारा जो फूड मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल कंपाउंड्स में जिसको ब्लड एब्जॉर्ब करता है एंड देन आपके सेल्स तक ये कैरी करता है. ऑक्सीजन जो है वो डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करती है, फिर एनर्जी रिलीज होती है और इसके बाद जो हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन रखती है. वेस्ट प्रोडक्ट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करते हैं, ये ब्लड कैरी करते हैं लंग्स तक जहाँ से ब्रीद आउट करते हैं. यूजेस ऑफ एयर. फॉर ड्राइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एयर इज नीडेड. Grains, pulses and fruits become dry when exposed to air. The process is faster in moving air. Clothes become dry due to evaporation. Moving air helps in winnowing and helps in separating grains from husk. Air helps in pollination of flowers and in dispersal of seeds. अब देखिए एयर का कितना इंपॉर्टेंस है.
ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ग्रेन, पल्स या फ्रूट्स, इनको ड्राई करने में हेल्प करता है। हमारे क्लोथ्स ड्राई होते हैं इवेपोरेशन की वजह से। मूविंग एयर की वजह से विनोविंग होता है, जिससे कि ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट किया जाता है। एयर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, फ्लावर्स के सीड्स के डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। एयर इज फिल्ड into the tires of vehicles like cars, scooters, trucks, buses, bicycles, etc. Air helps in the movement of sailboats, glider, parachutes, and aircrafts. Air is used in machines for digging. Compressed air is used in brakes to stop trains and other automobiles. Air makes us to feel cool due to the rapid evaporation of sweat. Air helps in moving windmills, which are used to lift water to generate electricity. इसके अलावा देखिए एयर को व्हीकल्स के टायर्स में फिल किया जाता है। ये सेल बोट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट, इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। मशीन्स में हेल्प होती है जब वो डिगिंग के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। और जो आपकी कंप्रेस्ड एयर है वो आपकी ब्रेक्स में यूज़ होती हैं, ट्रेन या किसी भी ऑटोमोबाइल को स्टॉप करने के लिए। एयर जो है हमें कूल फील कराते हैं क्योंकि रैपिड एवापोरेशन होता है स्वेट का। एयर जो है विंड मिल को मूव करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वाटर लिफ्ट होता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Notes for the chapter. Air is present everywhere. It cannot be seen, however, it can be felt. Moving air is called wind. Air occupies empty spaces. Nitrogen and oxygen together constitute 99% of the air. An object can burn only in the presence of oxygen. About 4/5 of air is nitrogen. It does not support burning. Plants prepare their food in the presence of carbon dioxide during the process of photosynthesis. During photosynthesis, oxygen is released. Hence, it gets replenished in the atmosphere. Animals take oxygen and produce carbon dioxide during the process of respiration. Aquatic animals use air dissolved in water for respiration. Dust and smoke are also present in air. Smoke is released from vehicles and from burning. Traffic policemen wear a mask in order to filter out smoke which is harmful. Dust and smoke can be seen as a streak of light when sunlight enters a dark room through a slit. Air also contains water vapor. Windmill generates electricity when wind turns its fan rapidly. Windmills are also used to draw water from wells and to run flour mills. Air helps in the flight of birds and insects and in the movement of sailing yachts, gliders, airplane, paper plane, etc. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।